شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان اور لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں جدت کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے وفد کو ڈیجیٹل پاکستان سے متعلق ویژن سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگی اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کے اہم جز ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹوں میں بڑھتی دلچسپی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مجوزہ سول سروس اصلاحات پر اجلاس۔ وفاقی وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سول سروسز اصلاحات کے لیے قائم کردہ کمیٹی سفارشات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ملک کی سول سروس کو عالمی معیار کی کارکردگی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جامع اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وفاقی سیکرٹریز اور دیگر اعلیٰ افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے ایک مؤثر اور شفاف نظام واضح کیا گیا۔ وزیر اعظم نے افسران کی کارکردگی کی بنیاد پر ترقی، مراعات اور دیگر سہولیات سے متعلق سفارشات مرتب کرنے کی بھی ہدایات دی۔ مملکت آصف علی زرداری کا دورہ بحرین۔ قصر القضیبیہ آمد پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کو بحرین کا اعلیٰ ترین ایوارڈ سلمان آل خلیفہ من الدرجہ اولیٰ سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ اس دوران دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان اور بحرین کے برادرانہ تعلقات کو نئی جہت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ زراعت، آئی ٹی، صحت اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو پاک بحرین تعلقات کا ہم ستون قرار دیا۔ شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے صدر آصف علی زرداری کے دورے کو دو طرفہ تعلقات میں اہم سنگ میر قرار دیا۔ شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کی جانب سے صدر آصف علی زرداری اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت لانا ہوگی۔ حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری کے لیے بہترین اقدامات جاری ہیں۔ معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ پی آئی اے کی نجکاری سے قومی خزانے پر مالی بوجھ کم ہوا۔ ایئر لائن جدید خطوط پر استوار ہوگی۔ نجکاری کے عمل سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شفافیت اور مؤثر کارکردگی کے لیے ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کام نہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنا کر کچھ قوتیں سندھ کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ ان قوتوں کا مقصد 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے اختیارات واپس لینا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تھر پارکر میں تقریر سے خطاب۔ کہا جو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے نکلے گا، وہ تھر کی عوام نے غلط ثابت کر دیا۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ پیپلز پارٹی تھر کے عوام سے محبت کرتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کوئلہ تھر کے عوام کا اثاثہ ہے۔ یہاں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کام شروع کیا تو سازش کے تحت انہیں روک دیا گیا۔ اس ایک منصوبے سے نہ صرف تھر میں معاشی انقلاب آیا بلکہ اسلام آباد کو بھی بجلی فراہم ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے چین کے سفیر جیانگ شائی کی ملاقات۔ پاک چین دوستی سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ سردار ایاز صادق نے کہا چین قابل اعتماد اور ہر آزمائش کی گھڑی میں ساتھ کھڑا رہنے والا ملک ہے۔ پاکستان کو چین کے ساتھ اپنی سدا بہار دوستی پر فخر ہے۔ دونوں ممالک کے مابین اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں قریبی تعاون قابل ستائش ہے۔ چینی سفیر نے اسپیکر سردار ایاز صادق کی جانب سے چین کے لیے تاثرات کو سراہا۔ کہا دونوں ممالک کے عوام دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان براہ راست رابطے منقطع ہونے کے بعد ممکنہ حملوں کے خدشات بڑھ گئے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کے درمیان رابطے معطل ہو چکے۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ایران کے محب وطن لوگ احتجاج جاری رکھیں، اپنے اداروں پر قبضہ کر لیں، مدد پہنچ رہی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ دوسری جانب تہران نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ سعودیہ، قطر اور عمان کا ایران پر حملہ نہ کرنے پر زور۔ امریکی حملے سے عالمی آئل مارکیٹ ہل جائے گی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مخالفت کی ہے۔ کہا ایران پر حملے سے امریکی معیشت کو بھی براہ راست نقصان ہوگا۔ امریکی اخبار کے مطابق تہران کو یقین دلایا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے اور امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنے فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔
ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया, हालात मामूल पर आने लगे। मुजाहिरों में 2400 से ज्यादा अफराद जाँ बहक होने की इतलात हैं। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई, ताहम इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है। अमरीकी इंसानी हकूक तंजीम ने दावा किया कि मुजाहिरों के दौरान अब तक 2403 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। एंटी इंटेलिजेंस हुकाम ने इंकशाफ किया है, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कार्रवाइयों में मुतअद्दिद घरों में रेड के दौरान अमरीकी साख्ता धमाका खेज मवाद और असलहा पकड़ लिया। ईरान में मुजाहिरों और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी। 200 पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन ग्वादर से मुतसिल रमदान गिब्द बॉर्डर राहदारी से पाकिस्तान पहुंचे। डीसी ग्वादर के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर पर ग्वादर से मुल्हिक सरहदी राहदारी पर ज़ायरीन और तलबा के आर्जी क़याम और आगे सफर के इंतजाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से फ्राहम किए जा रहे हैं। की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता साल 38 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुए, जबकि रवा साल 41 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स पॉलिसी FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल की गई है। FBR की तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर है। मौशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। मेशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। टैरिफ के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया गया। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी इजलास में नून लीग से दूरियां खत्म करने का फैसला कर लिया। तय पाया कि मुल्क के वसी दर मुफाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का भरपूर साथ देगी। हुकूमत के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। सिस्टम में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज इस इत्तेहाद में है, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस इत्तेहाद की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे फैसले करने की जरूरत है, कोई जज्बाती ना हो, बल्कि कौमी मुफाद को सामने रखकर फैसला करने चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। वर्ल्ड बैंक की रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह-ए-नमू 3% रहने की पेशगोई कर दी। जून 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के तखमीने में 0.1% कमी हुई। माली साल 2026-27 में पाकिस्तान की मौशी शरह-ए-नमू 3.4% रहने का इम्कान है। हालिया सैलाब के बाद ज़राई बहाली से मेशत को सहारा मिलने की तवक्को। आलमी बैंक का कहना है कि तामीर नौ की सरगर्मियों से मौशी सरगर्मियों में बेहतरी का इम्कान है, जबकि अमरीकी टैरिफ में इजाफे से पाकिस्तान की बरामदाद मुतासर होने का खदशा और दरामदाद में इजाफे से करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वफ्द के एजाज में तकरीब। वफाकी वजीर इत्तलात की बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत। अपने खिताब में कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की पाकिस्तान के तालीमी शोबे से वाबस्तगी खुशाइंद है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से जिद्दत, इख्तरा और नए तालीमी मॉड्यूल्स मुतारफ कराए गए हैं, जिससे पाकिस्तान में तालीमी मेयार को एक नई जहत मिली। उन्होंने कहा, मुसलसल बेहतरी और जिद्दत को अपनाना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की नुमाया पहचान है। यूनिवर्सिटी तहकीक और तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रही है और हर गुजरते साल के साथ तालीमी मेयार में वाज़ेह बेहतरी देखने में आ रही है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मखसूस तबके को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था कि बरामदाद में तरक्की ही पायदार तरक्की है। हुकूमती कोशिशों से माशी इशारे बेहतर हुए हैं। खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में इजाफा है। माहौल दोस्त माशी तरक्की वक्त का तकाजा है। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि तरक्की तब आएगी जब हर शहरी को काम के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान में खुशहाली का रास्ता सिर्फ ताकत और असर व रसूख तक रसाई बन चुका है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए निशकारी मोहम्मद अली ने तकरीब से खिताब में कहा कि पायदार मौशी तरक्की के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मेशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत मौशी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। मेकरद और माइक्रद इशारों के साथ बुनियादी ढांचा जाती तब्दीलियों की भी जरूरत है। जबकि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि पायदार मौशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवानों को अपना हिस्सा डालना होगा। पाकिस्तान बिलमुकाबला दुनिया में हमें अभी बहुत मेहनत करना है। पंजाब हुकूमत का चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए बड़ा फैसला। चाइल्ड लेबर के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करने पर गौर। 18 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन की माली मुआवनत की जाएगी। बच्चों को मजदूरी से निकालने पर वालिदैन को मशरूत कैश सपोर्ट दी जाएगी। वालिदैन की माली मुआवनत के बाद बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम की जाएगी। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए टास्क कमेटियाँ कायम की जाएंगी, जिसके लिए जामे प्लान तैयार किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने चाइल्ड लेबर के मौजूदा कानून में तरामीम के लिए सिफारिशात तलब कर ली। दूसरी जानब कमेटियों को चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए 20 से ज्यादा टास्क सौंप दिए गए। बच्चों की डिजिटल मैपिंग और जियो टैगिंग होगी। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हेल्पलाइन और बहाली मराकज कायम किए जाएंगे।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। 4 जजों की मुद्दत में 6 माह तोसी की मंजूरी दी गई। जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस फराह जमशेद, जस्टिस साबतुल्लाह और जस्टिस औरंगजेब की मुद्दत में 6 माह की तोसी की गई। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुद्दसर अमीर, जस्टिस मोहम्मद तारिक अफरीदी और जस्टिस अब्दुल फैयाज को मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस इस्लाहुद्दीन और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह को भी मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक जुडिशियल कमीशन इजलास में पीटीआई अरकान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर शरीक नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून आफ्ताब आलम आफरीदी भी इजलास में नहीं आए। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में माहौल दोस्त एंड ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा फैसला करते हुए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिकल या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूल गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना है। नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2026 का जल्द ऐलान होगा। पंजाब हुकूमत का कहना है कि नए पेट्रोल पंप्स के लिए एनओसी की मंजूरी अब इलेक्ट्रिकल चार्जिंग यूनिट लगाने से मशरूत होगी। किसी भी नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिकल चार्जिंग यूनिट की तनसीब के बगैर काम करने की इजाजत नहीं होगी। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र ने जंग में पाकिस्तान की बढ़ोतरी का एतराफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन संदूर के दौरान पाकिस्तान के पास तमाम सैटेलाइट मालूमात थी कि हमारा कौन सा जहाज, कौन सा तैयारा और यूनिट कहाँ है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुकम्मल मालूमात हासिल थी कि कौन सी मरकजी यूनिट या कौन सा तैयारा कहाँ हरकत कर रहा है। भारतीय आर्मी चीफ ने ये एतराफ भी किया कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल नाजुक है। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और चीन ने रॉकेट फोर्स खड़ी की है और इस तरह की रॉकेट फोर्स खड़ी करना भारत की भी जरूरत है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत रोल मॉडल बन चुका है। मुखालिफिन पंजाब से तरक्की और खुशहाली में मुकाबला करें। सियासी सौदाबाजी और मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर को मद्देनजर रखते हुए मरीम नवाज पंजाब में टेक्नोलॉजी को तरजीह दे रही हैं। ज़राअत को हमेशा रीढ़ की हड्डी कहा गया, लेकिन पहली मर्तबा मरीम नवाज ने ज़रई शोबे में हकीकी मानों में जिद्दत मुतारिफ करवाई है। आज पंजाब तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में बाकी सूबों से आगे जा रहा है। बाकी सूबे मरीम नवाज से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं।